Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. You can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get de-notified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. I hope I am audible to you. So what we are going to study today, what we are going to learn today. So today's topic is form wizard and report wizard in MS Access. So वो यूज कैसे करना है हम लोग देखेंगे. The contents of today's lecture are
Introduction. Using form wizard to create a form. Then searching a record using a form. Then we are going to see next point, that is report wizard. And lastly, creating a report using report wizard. So let's get started with the actual practical sessions for it. So देखिए पहले हमको क्या करना है. I am going to open MS Access and I will open my old database here which we have used for the previous lectures. Okay, here you can see. First of all, I will open Notepad. So first point of today's lecture is form wizard. What is form wizard and how to use it? देखिए, what we can say, forms are the objects that are used to get data from user in interactive manner. ठीक है, यूजर से इंटरेक्टिव मैनर में डेटा लेने के लिए हम लोग फॉर्म विजार्ड जो है वो यूज करेंगे. सो फॉर्म्स प्रोवाइड यूजर्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस to enter data, and the entered data is stored in the tables of database. ठीक है, अभी देखिए फॉर्म्स जैसे कि आप लोग कोई एग्जाम फॉर्म भरते हो, सो वैसे ये यहाँ पर क्या है, ये फॉर्म विजार्ड जो है वो यूज होता है. सो इसके लिए क्या करना है हमको, जस्ट वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स. अब तक हम लोगों ने देखा कि टेबल्स यूज करने हैं, यूज कैसे करने हैं. अभी हम लोग देखने वाले हैं कि वो टेबल इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली कैसे करने हैं. सो इन today's lecture we are going to see firstly form wizard, and the second step which we are going to study is report wizard. So firstly we will see what is meant by the form wizard. Now I will open my MS Access. देखिए यहाँ पर मेरे टेबल्स हैं. अभी मैं क्या करूँगी, पहले क्या कर देती हूँ, मैं हमने प्रीवियस यूज के लिए वाले फॉर्म से वो डिलीट कर देती हूँ. I will delete all the previous things and we will start with a new one. ठीक है, ये सारी क्वेरीज हैं, इसके लिए कुछ हमें फिलहाल करने की जरूरत नहीं है. एंड आई एम हैविंग माय टेबल्स इन द डेटाबेस, दैट इज कंस्ट्रेंट चेक डेटाबेस, कस्टमर 1, एम्प्लॉय, ऑर्डर एंड ऑर्डर्स 2. देखिए अभी हमें कहाँ पर जाना है, वी आर गोइंग टू द टैब दैट इज क्रिएट, एंड हियर आई विल डू व्हाट, फॉर्म डिजाइन में जाऊंगी या फिर मैं ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे. सो ब्लैंक फॉर्म में क्या होता है, जनरली क्रिएट अ फॉर्म विथ नो कंट्रोल्स और फॉर्मेट. एंड फॉर्म डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फॉर्म in design view. And in design view obviously you can make the advanced design changes to the forms also, and such as adding custom control types and writing the code. So अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मूव फॉर्म्स में भी ऑप्शन है आपको, देन यहाँ पर नेविगेशन है. सो आई विल स्टार्ट विद दिस, दैट इज फॉर्म विजार्ड. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म विजार्ड में मुझे एक पर्टिकुलर टेबल के रिलेटेड जो है फॉर्म क्रिएट करना है. तो वो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर टेबल से कस्टमर 1 एंड एम्प्लॉय, ऑर्डर एंड ऑर्डर 2, 1 2 3 4 5 टेबल्स आर देयर, सो आई कैन यूज एनी ऑफ दिस. ठीक है, कस्टमर. सो अभी कस्टमर में से मैं क्या करूँगी, फिलहाल के लिए 1 एंड 2 फील्ड्स यूज करूँगी, या फिर आई कैन यूज ऑल ऑफ दिस फील्ड्स. ठीक है, चलिए अभी आई विल यूज ऑल ऑफ दिस फील्ड्स फॉर दैट. I will select customer ID, surname and first name. I will click on next. ठीक है, फॉर्म विजन में देखिए यहाँ पर कॉलमनार होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, डेटा शीट होती है एंड जस्टिफाइड होता है. सो एक काम करते हैं हम लोग, डेटा शीट या फिर टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है, जो है बाय डिफॉल्ट फिलहाल के लिए मैं वो रहने देती हूँ. देन नेक्स्ट
what title do you want to have for your form? मैं इसका नाम दे दूंगी कस्टमर फॉर्म. And you can open the form to view or enter the information or modify the forms design. Okay, देखिए मैंने यहाँ पर modify the form design कर दिया. So I will save it first and I will close it. अभी देखिए डायरेक्टली मैंने फॉर्म ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कस्टमर फॉर्म इज ओपन हियर. उसका नाम जो मैंने बाय डिफॉल्ट दिया था. देन यहाँ पर तीनों के तीनों फील्ड्स आ गए. कस्टमर आईडी, सरनेम एंड फर्स्ट नेम. वी कैन क्रॉस चेक हियर. कस्टमर आईडी, सरनेम एंड फर्स्ट नेम. यस आ गए हैं. अभी यहाँ पर अभी अगर देखेंगे नीचे एक टैब है वहाँ पर रिकॉर्ड्स. यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड 1 of 3 मतलब यहाँ पर आपने कितने रिकॉर्ड्स है 3 रिकॉर्ड्स एंड करंट रिकॉर्ड इज 1. दैट इज फर्स्ट रिकॉर्ड. सो आई विल नेविगेट इट हियर. दैट इज 11 Juno and XYZ. This is the record number 2 of 3. Then next record number 3 of 3. Then next nothing is there. देखिए नेक्स्ट का मीनिंग क्या होगा ये करंट रिकॉर्ड. अभी 3 थे अभी 4 जो है वो एम्प्टी रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट उसने दिया है. सो आई कैन एंटर द वैल्यू हियर 15 टाइगर एंड स्पॉट. ठीक है अभी मैं क्या करूँगी ये फॉर्म व्यू क्लोज करूँगी एंड आई विल ओपन द कस्टमर व्यू अगेन. देखते हैं. यस टाइगर स्कॉट हमारा रिकॉर्ड इजीली एंटर हो गया है. देखिए अगर सपोज अगर किसी को एम एस एक्सेस का इतना अच्छे से पता नहीं है, क्वेरीज कैसे लिखनी है ये आपको पता नहीं है. सो फॉर दैट यूज़र फ्रेंडलीनेस हम लोग क्या करते हैं ये फॉर्म व्यू जो है वो ऑप्शन जनरली यूज़ करते हैं. अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फॉर्म की डिज़ाइन है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे फॉर्म में लेआउट व्यू है वहाँ पर आप लोग लेआउट देख सकते हैं. प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, व्हाटएवर. डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लोग दे सकते हो अगर कोई एम्प्टी आपको देना है वहाँ पर. देन नेक्स्ट वन इज वैलिडेशन रूल्स आर देयर इफ यू वांट समथिंग. देन वैलिडेशन टेक्स्ट, देन फिल्टर लुकअप एनेबल्ड, यस, लॉक, नो. ये सारी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है. ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर. देन नेक्स्ट व्यू इज डिजाइन व्यू. देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम हेडर इज व्हाट, दैट इज कस्टमर फॉर्म. डिटेल्स आप लोग फॉर्म फुटर देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्म फुटर की जगह सपोज मैं फॉर्म में जाऊँगी या फिर डेटा फॉर्मेट उसका बैकग्राउंड क्या है वो दे दूँगी. ठीक है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. नाउ सपोज आई विल अप्लाई द स्पेशल इफेक्ट रेस्ट. यहाँ पर से ज़्यादा यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज देखेंगी बिकॉज दिस इज व्हाट लेबल. यू कैन सी इट इज़ अ लेबल. सो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी शीट में जाके आप उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बदल सकते हो. यू कैन सी इट हियर. There are so many properties: line spacing, font size, text alignment, text weight, font underline, font italic, font color and so on. या फिर आप लोग यहाँ पर से भी डायरेक्टली उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं. देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. ये बहुत ही बड़ा हो गया है ये. बोल्ड, italic, no underline and text color. ओके बहुत ही डार्क है कोई बात नहीं. आई विल चेंज एंड बैक कलर थीम कलर विल बी इट्स अ वेरी. ठीक है ये दे दिया मैंने इसका बैक कलर. सो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. ये हमारा लेबल है आप लोग सेलेक्ट कर भी पता चलता है. व्हाट इज दिस CID लेबल, कस्टमर ID लेबल एंड दिस इज व्हाट टेक्स्ट बॉक्स.
सो यहाँ कर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बुक एंटी का लिख देती हूँ सारे। और इसको मैं क्या कर दूंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉन्ट ले लिया मैंने। कौन सा था वो, कौन सा बस। देखिए आप लोग इजीली फॉर्म के डिज़ाइन जो है वो सेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। आई विल सेव ऑल दिस चेंजेस। अभी यहाँ पर देखिए फॉर्म के डिज़ाइन में आप लोगों ने चेंज कर दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 2 3 एंड 4। अभी द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन सी हियर, अभी फॉर्म का बैकग्राउंड जो है वो कैसे करना है चेंज, वो एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। और उसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग के बाद हम लोग देखेंगे। अभी मैं इसके डिजाइन में जाऊंगी, यहाँ पर थीम्स जो है वो सेलेक्ट करूंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं दैट आई कैन अप्लाई हियर। ओके, फॉर नाउ आई विल टेक दिस थीम। ठीक है, ये थीम ले ली मैंने। यहाँ पर कलर्स जो है हम लोगों ने वो अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ले लिया मैंने। उसके बाद फॉन्ट्स जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और चेंज कर दिया। ये पूरे फॉर्म के लिए प्रॉपर्टीज जाएंगी। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज़ करना है आपको देखिए। इसके अलावा अगर मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेबल वगैरह लेने हैं तो क्या करना है, I will write here mobile. Okay, what was this? Yes, it is label. देखिए आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली आपका कर्सर ले जाकर मोबाइल माउस का यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगी। ठीक है, इसका नाम मैं दे दूँगी मोबाइल। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड हो गया है, वो मैं डिलीट कर दूँगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो फॉर्म डिज़ाइन में बटन भी है, मैं उस पर यस। अभी ये देखिए बटन, कमांड बटन विजार्ड क्या करती है यहाँ पर, अगर आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दैट इज रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशंस, फॉर्म ऑपरेशंस। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में कौन सा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट न्यू रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड। ठीक है, मैं ये सेव रिकॉर्ड ले लूँगी। ओके, देन नेक्स्ट टेक्स्ट क्या रहेगा, सेव रिकॉर्ड, पिक्चर सेव रिकॉर्ड। ओके ठीक है, एंड सेव, CMD सेव, ऐसे मैं उसको नाम दे दूंगी। देखिए यहाँ पर सेव जो बटन है वो आ गया है। ठीक है, हम लोग ऐसे एक फॉर्म डिजाइन करके लेते हैं। उसके बाद एक और बटन ले लूंगी, रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशंस, ऐड न्यू रिकॉर्ड, गो टू न्यू। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इसका नाम रहेगा CMD ऐड फिनिश। ठीक है, देखिए कमांड 11 है एंड कमांड सेव। देन नेक्स्ट मैं एक और बटन ले लेती हूँ, रिकॉर्ड नेविगेशन, फाइंड नेक्स्ट, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप फॉर्म डिजाइन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशन से डिलीट ऑपरेशन भी है, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अपलोड रिकॉर्ड, फॉर्म ऑपरेशन से क्लोज फॉर्म, देन रिपोर्ट ऑपरेशन से मेल रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, एप्लीकेशन है क्विक एप्लीकेशन एंड मिसलेनी।
तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें डिलीट रिकॉर्ड एक ऐड कर देते हैं। डिलीट रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट जो है मैं ले लेती हूँ, इसका नाम मैं दे दूंगी CMD डिलीट। इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर इजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ग्रिड व्यू जो आपको मिल गया है। सो उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, ओके। उसके बाद ऑप्शंस क्या है, देखिए टैब कंट्रोल ऑप्शन है। टैब कंट्रोल में आप लोग डिफरेंट टैब्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमें इसका यूज़ नहीं करना है। देन दिस इज फॉर टू क्रिएट अ हाइपर लिंक in your document for quick access to web pages and files. So the next option is navigation control. हम लोग navigation control भी ले सकते हैं उसके लिए। Then option group is there. You can use page break also अगर आपका फॉर्म बड़ा हो रहा है। Then combo box है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थोड़े से लाइन वगैरह ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज टॉगल बटन, यहाँ पर फॉर्म डिजाइन लिस्ट बॉक्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं हम। एंड रेक्टेंगल के अंदर सपोज मैं क्या कर देती हूँ, ये सारे के सारे बटन जो है वो डाल देती हूँ। सो लाइकवाइज वी कैन डिजाइन आवर फॉर्म एज पर आवर नीड। Then next what we can have, there are so many options you can see here. आप लोग चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। यू कैन अनबाउंड द ऑब्जेक्ट फ्रेम, यू कैन add the attachments, you can use the option button, then you can use the subform or sub report, then in bound object frame you can use image also you can insert here, web browser control आप लोग यहाँ पर कर सकते हो एंड चार्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए हम लोग ये सारे ऑप्शंस में से ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो है वो देखते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया और फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 10, 11, 12 एंड 15 रिकॉर्ड्स हैं। यस, देखिए न्यू रिकॉर्ड में 12, 10, 11, 12 एंड 15 was there, right? 13 नेम सभी हम लोग अभी डाल देते हैं। फ्रॉम, ओके सॉरी ये नेम है ना, सरनेम है, सॉरी। सो आई एम पुटिंग द रैंडम नेम्स। अभी यहाँ पर ये फील्ड मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की थी कि यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, पर वो नहीं होती क्योंकि उसके डेटाबेस में हमने जो क्रिएशंस किया था वो ही अलाउड नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए आई विल क्लिक ऑन दी सेव रिकॉर्ड, यू कैन सी हियर it is the new record, it is the save record option and it is lastly we can delete it. So देखते हैं अभी, देखिए मेहतारा इजीली यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। देखिए कितने इजीली हम लोगों ने फॉर्म जो है वो क्रिएट करके लिया है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गए। सो देर आर सो मेनी क्रिएटिव्स वी कैन यूज फॉर दी फॉर्म डिजाइन। थोड़ा सा और इसका हम लोग इलेबरेट करके देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये डिज़ाइन में एक और बटन ऐड करके देखते हैं। बटन्स जो है बहुत यहाँ पर यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इतना। सो अभी फाइंड रिकॉर्ड बटन हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पिक्चर विल बी बाइनोकुलर्स, राइट, एंड CMD. Always give the meaningful names to the tools which we are going to use for performing the operations. इसको मैंने सेव कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए I will write the CIT12 and search. You must enter a value in customer surname. अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या कर देती हूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज जो है वो ऐड कर देती हूँ, देखते हैं उसको कुछ रिकॉर्ड मिलता है या नहीं।
The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key or relationships. Change the data in the field or fields that contain duplicate, remove the index, redefine the index to permit the duplicate entries and try again. अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है 12 जुनो एंड XYZ. ठीक है, हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करके देखते हैं वो रन होता है नहीं. सर्च ऑपरेशन में जनरली हमको क्या होगा यहाँ पर वो मॉडिफिकेशन के लिए पूछेगा, इसलिए वो यहाँ पर रन नहीं होगा. और अगर आपको रन करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कोड जो है वो आपको एडिट करना पड़ेगा. 15 टाइगर स्कॉट. देखिए ओके, यहाँ पर सर्च होगा पर उसका आपको पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलेगा. तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए फिलहाल के लिए मैं मेरा कस्टमर फॉर्म कहाँ पर है. आई विल सर्च नाउ. अगर मुझे 15th नंबर का सर्च करना है, देखिए यहाँ पर सर्च ऑप्शन है. देखिए 15 टाइगर स्कॉट आ गया, 11 जुनो XYZ, 12 जुनो XYZ was there, then 10 Scott XYZ is there. Okay, so easily we can search the forms, we can edit the forms also, we can create so many operations and perform so many operations easily by using some commands, some check boxes, some text and so. अभी देखिए फॉर्म के डिजाइन हम लोगों ने जो देखी थी यहाँ पर, उसकी हाइट हो विड्थ हो वो भी हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं. I will again go to the design view. I will click here. Okay, and I can change its height width also. देखिए अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ी सी चेंज कर दी. थोड़ा और इसको एक्सपांड कर देती हूँ. इसको उठा के थोड़ा सा नीचे डाल दिया. थोड़ा सा इसको हम लोगों ने सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं. ये रेक्टेंगल मैंने बड़ा कर दिया. ठीक है, अभी ये फील्ड मेरे लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए मुझे और कोड्स लिखने पड़ेंगे जो मुझे फिलहाल नहीं लिखने हैं. फर्स्ट नेम, ये सर नेम. हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जरा सा ऊपर नीचे कर देते हैं. टेबल में वैसे एंटर वो हो जाएगा पर यहाँ पर दिखने के लिए ये ठीक नहीं लगेगा. सेव कर दिया. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसके व्यू में अभी हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ चेंज कर दी. देन लेबल आर कैसे करना है वो देखा. अभी इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, देखिए फिर बैक कलर, सॉरी बहुत ही ठीक है. कौन सा कलर दे दे यहाँ पर जो आंखों को ज़्यादा तकलीफ ना दे. थोड़ा सा हम लोगों ने फेंट कलर ले लिया यहाँ पर. ठीक है, पहले भी कलर जो था ठीक है, ये वाला ले लेते हैं. एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर है. यहाँ पर आप लोग टैब ऑर्डर्स देख सकते हैं, रूलर जो है देख सकते हैं, पेज हेडर फुटर देख सकते हैं, फॉर्म प्रॉपर्टीज. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. देखिए पेज हेडर, पेज फुटर आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो to add some page headers and footers. So I will close for now. Yes, I will close this again. Okay, देखिए फॉर्म जो है थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको ऐसे दिख सकता है.
आप लोग यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हो या फिर आप लोग बटन ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। देखिए ठीक है, ये फॉरेन की क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने क्या किया है, ये कस्टमर टेबल जो है वो ऑर्डर्स के साथ उसके फॉरेन की अटैच की हुई है। इसकी वजह से वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करने के लिए राजी नहीं है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, देन सेव द रिकॉर्ड, then delete and search. So in this way we can change of its height, width also, then we can apply some colors, then properties also, and we can easily use these forms for the users को आप लोगों ने सिर्फ ये फॉर्म भी दिया तो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली इन बैकग्राउंड ये फॉर्म जो है वो आपके सेव होते जाएंगे और टेबल्स में डेटा जो है वो ऐड होता जाएगा। So in this way what we can do, we can use the form view there. So यहाँ पर अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप लोगों ने देखा रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है। अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद द अदर टेबल, दैट इज नेम ऑफ द टेबल इज व्हाट, टेबल ऑर्डर्स, राइट। अगर आप लोग दूसरे टेबल के लिए आप लोग डिजाइन करोगे तो यू कैन इजीली डिलीट इट। अभी जो डिलीट एक काम करते हैं, हम लोग एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं जो कि वहां पर रिलेटेड नहीं है ऑर्डर्स में। अभी फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, डिलीट ट्रायल नेम, ऐसा कुछ तो मैंने रख दिया, देन डिलीट ट्रायल नेम एंड आई विल सेव इट। ठीक है, देखते हैं सेव हो गया है क्या, कस्टमर फॉर्म है ना हमारा ये, राइट। देखिए डिलीट ट्रायल नेम, डिलीट ट्रायल नेम आ गया। अभी मैं क्या कर देती हूँ, ये फॉर्म में थोड़ा सा नेक्स्ट रिकॉर्ड को जाऊंगी। ठीक है, मैंने ये नेविगेशन कर लिया, 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5। अभी मैं क्या कर देती हूँ, इसको डिलीट। यस, देखिए यहाँ पर कोई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई नहीं की है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डिलीटेड डिलीटेड। सो आई विल रिफ्रेश। यस, so in this way we can delete the record using a form, we can search the records using a form, we can add the records। then यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग नेविगेट कर सकते हो, आप लोग उसको सर्चिंग, सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर अगर मैंने असेंडिंग में ले लिया तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, डिसेंडिंग में ले लिया तो लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, रिमूव सॉर्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आ जाएगा। So in this way we can use the form wizard. Then next one is the report wizard. Okay, what is mean by the report? First we will see a database report is the formatted result of data coming from database objects like tables or queries. Okay, and the reports are very useful tools for decision making and analysis. ठीक है, चलिए फिर ये रिपोर्ट विजर हम लोगों को कैसे लेना है वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल चलिए हम लोग रिपोर्ट विजर यूज कैसे करना है वो देखते हैं। सो आई विल क्लोज दिस। सेम फॉर्म विजर्ड के साइड को आपको ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट विजर्ड। सो रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक रिपोर्ट एंड रिपोर्ट विजर्ड। अभी मैं क्या कर देती हूँ, सारे के सारे क्लोज कर देती हूँ। यस, ठीक है, कौन सा टेबल लेना है मैं अभी क्या कर देती हूँ, कस्टमर टेबल पे हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। नेक्स्ट टेबल विल बी एम्प्लॉय टेबल। आई विल ऐड एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर, सारे के सारे। नेक्स्ट, ओके, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स? नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से असेंडिंग होनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। Tabular and portrait is okay by default, and
I will write the name as employee report. देखिए आ गया यहाँ पर एम्प्लॉय रिपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर। आप लोग अगर एम्प्लॉय टेबल में जाओगे तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज दी रिपोर्ट। अभी यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल मैं जाऊँगी उसके प्रिंट व्यू में है, हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सो सेम वे आप लोगों ने जैसे पहले फॉर्म व्यू यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट व्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं प्रॉपर्टी शीट, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बटन डाल देती हूँ। और मैंने बटन नहीं लिया, ठीक है, ये डिलीट कर देती हूँ, दैट इज़ नॉट ऑफ माई कंसर्न। अभी इस कमांड पर हम लोग वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म पर किए थे। सो यहाँ पर आप लोग सारे के सारे सेम ऑप्शन, जैसे फॉर्म में ही यहाँ पर थीम्स चेंज कर सकते हो आप लोग। देन यू कैन सी इट्स लेआउट व्यू ऑल्सो, लेआउट कैसे यूज़ किए हुए देखिए यहाँ पर। देन आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट व्यू देख सकते हो उसका, एंड डिज़ाइन व्यू ऑल्सो। ओके, सो इन दिस वे देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय रिपोर्ट आ गया। देखिए मैंने एक कमांड ऐड की हुई थी, वो यहाँ पर ऐड हुई है, पर वहाँ पर कोई भी ऑपरेशंस मैंने जो है परफॉर्म नहीं किए हुए थे। सो वी कैन हैव दिस रिपोर्ट्स डायरेक्टली बाय यूजिंग दी रिपोर्ट विज़ार्ड। अभी हम लोग उसके डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है, ये नया रिपोर्ट आ गया, सॉरी। अभी इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और ये कमांड जो है हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड व्यू रिपोर्ट, देखिए वो वहाँ से वैनिश हो गई। यहाँ पर डेट भी मिल जाती है आपको, कितने पेजेस का रिपोर्ट है वो भी मिल जाता है, क्या क्या फील्ड्स है वो भी आपको मिल जाती है डायरेक्टली। अगर आपको कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस चाहिए तो यहाँ पर ये रिपोर्ट व्यूज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो इसके भी सेम प्रॉपर्टीज है जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म प्रॉपर्टी में देखी हुई थी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने देखी थी फॉर्म में वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, that is how to use the form wizard and report wizard. So in today's lecture we have seen using form wizard to create a form, searching a record using form, then adding and deleting the record using a form. The next point we have seen what is meant by the report wizard, then creating a report using the report wizard. So friends, let me tell you about the freedom to learn offer. Yes, the Unacademy is having the exclusive offer for the class 9 students only. You can buy 2 years class 9 subscription and you can get free IIT JEE NEET Foundation and NTSC subscription, and you can save 40% on subscription price. So offer is limited. So जल्द से जल्द आप लोग ये ऑफर के लिए सब्सक्राइब करके लीजिए। Offer is valid from 11th of August 2021 to 31st of August 2021. And yes, this offer is valid for first 500 CBSE learners. So get your subscription now. So now we are going to have the next session, that is quiz session. So let's get started with that. So it's time for quiz now. So ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द कम्युनिकेशन मीन्स being able to tell other people what you want to say. True or false? Your time starts now.
time up. The correct answer is true. Yes, communication means being able to tell other people what you want to say. So the next question is, which of the following communication means communicating orally? Your options are verbal form, non-verbal form, written form, and visual form. So your time starts now. So time up. The correct answer is A, verbal form. Yes, verbal form is you are actually communicating orally. The next question is, which of the following communication means communicating via maps or charts? Your options are verbal form, non-verbal form, written form, and visual form. So your time starts now. The correct answer is D, visual form. Yes, visual form में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, communication via maps और chart कर सकते हैं. So the time for next question. Which of the following communication means communicating using body language? Options are A, verbal form, non-verbal form, written form, and visual form. Your time starts now. The correct answer. Which of the following communication means communicating using body language is non-verbal communication. The next question, that is question number 5. Which of the following communication means communicating using printed information? Options are verbal form, non-verbal form, written form, and visual form. Your time starts now.
Which of the following communication means communicating using printed information? The correct option is C, written form. So let's move towards the next question. Question number 6. Oral communication is the dash form of communication. A, slower. Second, speedy. Your time starts now. Correct answer is oral communication is the speedy form of communication. The next question, that is question number 7, is on your screen. Which of the following has emotional barrier? Options are A, verbal form, non-verbal form, written form and visual form. Your time starts now. The correct answer is A, verbal form is having the emotional barrier. Then we will move towards the next question, that is question number 8. Which of the following can be reused or duplicated? Answers are A, verbal form, B, non-verbal form, C, written form and D, visual form. Your time starts now. So the correct answer is C, written form. It can be reused or duplicated. We will move towards the next question, that is question number 9. Newsletter comes under what form of communication? Your options are A, verbal form, B, non-verbal form, C, written form and D, visual form. Your time starts now.
So the correct answer is newsletter comes under what form of communication? That is written form. Then we will move towards the next question, which is question number 10. Newsletter comes under what form of graphs? Your options are A. Verbal form, B. non-verbal form, D. Written form, and C written form, and D. visual form. Your time starts now. So the correct answer is visual form. Yes, newsletter comes under visual form of graph. The question number 11 is on your screen. Which of the following feedback provides meaningful information? Your options are A. Descriptive feedback and B. Non-descriptive. Your time starts now. Time up. Correct answer is A. Descriptive feedback, which provides the meaningful information. Then we will move towards the next question. Question number 12. Which of the following feedback talks about a point particularly? Options are A. Specific feedback, B. Non-specific feedback. Your time starts now. So the correct answer is specific feedback, which talks about a point particularly. The question number 13 is which of the following feedback doesn't provide detailed description? Options are A. Descriptive feedback and B. Non-descriptive feedback. Your time starts now.
So the correct answer is non-descriptive feedback doesn't provide detailed description. We will move towards the next question, question number 14. Which of the following feedback gives general overview? Options are A. Specific feedback, B. Non-specific feedback. Your time starts now. Oops, time up. The correct answer is B. Non-specific feedback, which gives general overview. Question number 15. Which of the following sentences mean command? Options are A. Declarative sentence, B. Interrogative sentence, C. Imperative sentence, and D. Exclamatory sentence. Your time starts now. The correct answer is C. Imperative sentence means command. The next question, that is question number 16, is which of the following sentences means exclamation? Options are A. Declarative sentence, B. Interrogative sentence, C. Imperative sentence, and D. Exclamative sentence. Your time starts now. Correct answer is D. Exclamatory sentence, which means exclamation. We will move towards the next question, question number 17. Which of the following sentences means question? Options are A. Declarative sentence, B. Interrogative sentence, C. Imperative sentence, and D. Exclamatory sentence. Your time starts now.
So the correct answer is B. Interrogative sentence means question. The question number 18 is on your screen. Which of the following sentences mean statements? Options are A. Declarative sentence, B. Interrogative sentence, C. Imperative sentence, and D. Exclamatory sentence. Your time starts now. The correct answer is A. Declarative sentences mean statement. The next question, question number 19 is, which of the following is a word that introduces noun? Your options are A. Noun, B. Pronoun, C. Article, and D. Adverb. Your time starts now. The correct answer is C. Article is a word which introduces a noun. The last question is, which of the following means a word that stands in for a noun? Your options are A. Noun, B. Pronoun, C. Article, and D. Adverb. Your time starts now. So the correct answer is B. Pronoun means a word that stands in for a noun. So that's all for today's session. We will meet in the next session. Till then, bye. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for plus and iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized
and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's crack it. So the Unacademy offer for Plus and Iconic subscription. That is offer is going to end on 16th of August 2021. That is on Monday. So we are having the exciting mega offers for CBC classes 6 to class 12. So offers are likewise if we are having the Unacademy Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, then you are going to have the free CBC subscription for totally 2 months. The same case if you are having the subscription for 24, 36 and 48 months, then you are going to get the free subscription for the 4 months. And if you are having the Plus and Iconic subscription for 60, 72 and 84 months, then you are going to have totally free CBC subscription for 6 months. So same case for the free Creative Corner subscription. That is, if you are having 12, 15 and 18 month subscription, you will get totally 2 months free. If you are having 24, 36 and 48 month subscription, then you are going to have the free Creative Corner subscription for 4 months. And if you are having the subscription for 60, 72 and 44 months for Unacademy Plus and Iconic subscription, then you will get the free Creative Corner subscription for totally 6 months. Yes, obviously you can have the flat 10% discount on purchasing Plus subscription for all durations. So उसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते, that is TDLab, and this offer is valid for the first 500 subscriptions. So जल्द से जल्द आपका subscription ले लीजिए. Let me tell you about the mega launch every Monday. Yes, and new batches for doubt clearing and NCERT exercises. जी हाँ बिल्कुल, क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए हमारे पास मेगा लॉन्च एवरी मंडेज है. सो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट अनअकैडमी का प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है बेस्ड ऑन योर चॉइस. सो द टर्म 1 विक्ट्री बैचेस, दैट इज फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड SST, दैट इज सोशल साइंस. सो ये जो स्टार्ट होने वाला, द डेट इज 16th of the August 2020. And the same case for the class 10, that is term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social science. So this is going to start on the 16th of the August 2020. So the same case for the CBSE classes 9 and class 10. The mega launch Mondays are going to start soon, that is note down कर लीजिए date, and you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So you are having new batches, doubt solving batches and NCERT exercises also. So student, जल्द से जल्द हमारा channel subscribe कीजिए and you can have the Unacademy Plus as well as Iconic subscriptions. So friends, let me tell you about the basic plan about the Plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is Iconic जो है ये Plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए Plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes, obviously at Iconic you can take your CBC preparation to the next level with personal mentor. देखिए Plus के features क्या क्या है, you are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, live interaction with your mentors also, and yes obviously parent connect भी यहाँ पर रहेगा, that is teacher parent connection रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज TD Live for flat 10% of discount for both, that is on the Plus and Iconic solutions. You can select the Plus or Iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10, 11, 12 का लोगे
तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th 11th 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं। इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 will be for पर मंथ। देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। सो बेसिक क्लास का 9, 10th 11th 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए द सेम केस फॉर 3 months 6 months 12 15 18 24 36 एंड 40 months। देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा विथ 4,000 पर मंथ। देन नेक्स्ट वन इज 6 months 17,000 रहेगा विथ 2,833 पर मंथ। देन 12 months का रहेगा 28,000। देन 15 months का रहेगा 32,000। 18 months का रहेगा 35,000। 24 months का रहेगा 48,000। 36 months का रहेगा 66,000 एंड 48 months का रहेगा 83,000, that is 1,729 पर मंथ। सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो क्लास 10th 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए। 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए। 6 month का रहेगा 10,000 के लिए। 12 months का रहेगा 15,000 के लिए। 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए। देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए। एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा। And the same case for the iconic, that is for class 10th 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000, then 6 months का 17,000, 12 months का 28,000, 15 months का 32,000, that is 2,133 per month। 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए। ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So student जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन that is based on your that is plus or iconic, please सब्सक्राइब करके लीजिए। So the India's largest scholarship test, that is Unacademy Comeback. You can win scholarship worth rupees 1 crore. जी हाँ, it is on the every Sunday. So link is given in the description box. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So let me tell you about the Unacademy Combat Scholarship Test. ये क्या है? That is it is for your formula for success in classes CBSE 9th and 10th. So देखिए स्कॉलरशिप किस रहेगी, यू कैन हैव विन स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 1 crore एंड यू आर हैविंग 30 क्वेश्चंस फॉर टाइम ऑफ 45 minutes। 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव 45 minutes टाइम। सो यहाँ पर टेस्ट जो है यू कैन यूज द लैंग्वेजेस बोथ, दैट इज यू कैन यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड यू कैन हैव योर फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप लोग उस पर भी टेस्ट दे सकते हो, या फिर आपके पास लैपटॉप है आप उस पर भी टेस्ट दे सकते हो। इफ यू आर हैविंग द एप्पल यू कैन हैव द लाइव टेस्ट ऑन एप्पल मोबाइल आल्सो। सो enroll now. Our next upcoming Compact, Unacademy Compact, is on the 15th of August 2021 and the time will be at 11 AM.
तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए एंड अन अकेडमी कॉम्बैट की एग्जाम दे दीजिए। इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, यू विल हैव सम ऑफ द एंटरटेनमेंट, यस, एंड देयर आर चांसेस टू विन द स्कॉलरशिप आल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TD Live for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TD Live. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's